Assalamu alaikum. Today we are going to start a new, we can say, the subject that is basically regarding the tenancy problems in urban area. What we have studied before was the Tenancy Act, that was Punjab Tenancy Act 1887, which was basically dealing with the land in the village area, and the specification of the land we already discussed was the land used for purpose of agriculture and anything that is subservient to agriculture. But here we are going to talk about the land which is, or the building or the property which is not considered land as we discussed in Land Revenue Act or in Tenancy Act. Here we are going to talk about the premises, the buildings, or the land that is in urban area, शहरी इलाके. And one of the most important thing about this ordinance, which is called the West Pakistan Rent Restrictions Ordinance 1959, which was promulgated and which repealed the earlier ordinance of 1957. Guys, you need to understand one thing, that we have uh, four provinces and a capital, Islamabad now. So most of the provinces and the capital have their own rent laws. For example, Punjab has its Rent Premises Act, Rented Premises Act. Sindh has its own act. So this act which we are going to study now is not being practiced yet. If you study those acts, you will see very common things that are present in this act and in their own act. So अगर आप इस act को समझ जाते हैं तो इसका मतलब कि आप basically पूरे पाकिस्तान में जितने रेंट के जो लॉज हैं उन सारों के जो मेन उनके फीचर्स हैं उनको आप समझते हैं. बहरहाल इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका भी हम जिक्र करेंगे. द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंडलॉर्ड अकॉर्डिंग टू Urban Rent Restriction Ordinance 1957, that is was promulgated in West Pakistan. Why we call it West Pakistan? Because at 1959 we had two provinces only: Eastern Province, which is now Bangladesh, and the Western Province that we call now Pakistan. So who is landlord according to this ordinance, this present ordinance 1959? He is a person who lets building and receives rent in such consideration. His receipt of the money can be on the behalf of owner of the building. The word landlord should not be confused with the word of landowner, because landowner is the one who has right in the land. He is the owner. He may be the owner of the land also. But the landlord may be any other tenant. कोई और tenant भी तो हो सकता है जिसने आगे सबलेट किया हो आपकी इजाज़त से, यानी आपने उसको इजाज़त दी हुई कि तुम आगे इसको सबलेट करो, या आप खुद इधर मौजूद नहीं और वो आपकी जगह पे पैसे ले रहा है, तो वो लैंडलॉर्ड है ना, तो वो उस वक्त रेंट कलेक्ट कर रहा है. Sometimes person who receives rent is itself landowner, but in all cases he does not receive rent. E.g., for example, clerk or person appointed on the behalf of landowner. लैंड ने किसी और शख्स को कहा भी तुम रेंट कलेक्ट करो, वो उस वक्त वो लैंडलॉर्ड है. ये बात आपने याद रखनी है. ट्रस्टी, गार्डियन, receiver, executor, administrator, and such tenant who sublets are also landlords within the meaning of this ordinance. Assignee or any authorized persons are also called landlords. Their landlordship is confined up to the extent of the term for which they have sublet the building. तो देखिए लैंडलॉर्ड्स की इसमें कितनी वाइड डेफिनेशन है कि जो उसके साइनिस हैं, जिनको उसने एम्प्लॉय किया हुआ है कि तुम रेंट पे लीजिए, वसूल करो वो, और जिन्होंने आगे सबलेट किया हुआ, जिन्होंने आगे सबलेट किया हुआ अगलों के लिए, तो वो खुद लैंडलॉर्ड हो गए.
ठीक है, वो खुद भी टेनेंट है, टेनेंट उसके जिसने उनको सेलेक्ट किया, जब उन्होंने आगे सेलेक्ट किया तो फिर वो उनके लिए लैंडलॉर्ड है जिनसे वो रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारे ये सब इस लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन, तो आपने देखा कितनी वास्ट डेफिनेशन है लैंडलॉर्ड की इस ऑर्डिनेंस के तहत। अब इसी ऑर्डिनेंस के साथ टेनेंट को आप देखें, टेनेंट इज अ पर्सन हु पेज रेंट टू हिज लैंडलॉर्ड और ऑन हुज बिहाफ रेंट इज पेड टू हिज लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग। हो सकता है टेनेंट खुद ना देता हो, जिसके साथ आप लोग का एग्रीमेंट टेनेंसी का, वो खुद ना देता हो, कोई और उसकी जगह देता हो। टेनेंट रिमेन्स टेनेंट इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रेंट एग्रीमेंट। वंस अ टेनेंट always a tenant. He can never be an owner. He is always a tenant. Why? Because he was a tenant for the first place. On the first place, legal heirs of the tenant are also covered within the definition of tenant. But the persons who live with tenant with his permission are not considered as tenant within the meaning of this law. तो अच्छा ये देखिए, ये बात आपने याद रखनी है कि जो टेनेंट के साथ अगर कोई बंदा रह रहा हो, तो हो सकता है उसका गेस्ट हो या कुछ अरसे के साथ रह रहा, तो वो टेनेंट नहीं है। टेनेंट वो खुद ही है, क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड के साथ रिश्ता है, दूसरा बंदा साथ रह रहा है, उसकी मर्जी से वो टेनेंट लैंडलॉर्ड का टेनेंट नहीं है। हाँ, ये डिपेंड कर सकता है कि उसने टेनेंट को इजाज़त दी हो कि भाई तुम किसी शख्स को अपने पास होस्ट रख सकते हो फॉर 1 डे, फॉर 2 डेज, फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स, लेकिन उस सूरत में वो टेनेंट नहीं है, वो उस टेनेंट का सिर्फ गेस्ट है। person designate person designated for the collection of rent or other benefit is also not tenant। अब देखना कि जो शख्स जो है वो कलेक्शन ऑफ रेंट या दूसरे बेनिफिट को कलेक्ट करने के लिए आता है, वो भी टेनेंट नहीं होता। एग्जाम्पशन, एनी आउटसाइडर हु लिव्स विद द टेनेंट विद द रिटन परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, ही इज टेनेंट। रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड शेड्यूल टेनेंसी आर द काइंड्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। हम इसको देखेंगे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और शेड्यूल टेनेंसी क्या होती है, ये मैं इसको हम आगे भी देख लेते हैं, इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। तो बस आपने यहाँ पे याद रखा कि देखिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस पूरे ऑर्डिनेंस में। सारा जो इसका सेंट्रल आइडिया वो यही दो है। आप बेसिकली डिटर्मन कर रहे हैं इन दोनों के रिलेशनशिप को। याद रख लें, रेंट के जितने लॉज हैं, चाहे वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, चाहे वो सिंध का प्रेमिसेस एक्ट है, चाहे वो इस्लामाबाद का प्रेमिसेस एक्ट है, चाहे ये वेस्ट पाकिस्तान जो ये केपी में है, ये बलूचिस्तान में है, तो इन दोनों इन सब जो में आप जो बेसिक जो चीज़ है ना, वो जो सेंट्रल आइडिया वो है रिलेशनशिप ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग बीइंग अ लॉयर। जब आप इस किसी, चाहे आप लैंडलॉर्ड की तरफ से चाहे टेनेंट की तरफ से, तो आपके लिए सबसे जो बेसिक जो रिलेशनशिप जो बताना होता है आपने, वो ये होता है कि भाई ये देखें आप कि ये जो दो बंदे हैं इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। कंट्रोलर, हु इज़ द कंट्रोलर? ही इज़ अ जुडिशियल ऑफिसर होम प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट्स। अब देखिए वो बेसिकली जुडिशियल ऑफिसर होता है, उसको आप कंट्रोलर कहते हैं। ही डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ये उसका पहला काम। देखिए किसी भी, देखिए बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ जज, ये जज इसमें कौन है? कंट्रोलर। उसको आप कंट्रोलर कहते हैं, उसको आप जज नहीं कहते, उसको आप कंट्रोलर कहते हैं। होता वो जज ही है, लेकिन उसकी डेजिग्नेशन एज अ कंट्रोलर लिखा जाता है, रेंट कंट्रोलर लिखा जाता है उसको। याद रख लें, जब भी आप रेंट के मामलात में कोर्ट में जाते हैं तो आप बेसिकली इन दी कोर्ट ऑफ रेंट कंट्रोलर, ऑनरेबल रेंट कंट्रोलर लिखते हैं आप उसको ऑनरेबल जज नहीं लिखते। ठीक हो गया, याद रखिए ये बात। होता वो जज है, जज के डेजिग्नेशन का होता है। अंडर दिस ऑर्डिनेंस वो जज ही है, लेकिन आप उसको लिखते नहीं है। वो जुडिशियल ऑफिसर है, वो उसका जुडिशियल माइंड होता है, वो LB यानी कि वो उसी एक उससे आया होता है, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इवन ये होता है कि वो जो, बल्कि उस शख्स को रेंट कंट्रोलर बनाते हैं जिसके पास ऑलरेडी कुछ जज रहने के बाद भी उसके पास एक्सपीरियंस होता है कि ये मामलात को बड़ा उसे स्पीडी रखना होता है। और इसीलिए एक कॉमन पर्सन कैन नॉट बी जज, ये भी एक कैन नॉट बी कंट्रोलर, क्योंकि एक जज को ही कंट्रोलर के इख्तियार दिए जाते हैं, लेकिन जब उसको कंट्रोलर के इख्तियार दिए जाते हैं तब आप उसको जज नहीं कहते, वो एक जुडिशियल ऑफिसर फिर भी होता है। डिस्प्यूट्स रेफर टू हिम आर कॉल्ड एप्लीकेशन एंड नॉट सूट। देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ गई है। आप ये नहीं कहते कि आपने कोई उसके सामने सूट इंस्टीट्यूट किया, आप कहते हैं आपने उसके सामने एप्लीकेशन जो है वो
जो है वो दाखिल की है, दरख्वास्त आपने उधर दाखिल की है। ही डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ही फिक्सिस द फेयर रेंट। यहाँ पे अब उसकी पावर्स की बात आ रही है। फेयर रेंट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सिविल सीपीसी उस पर लागू नहीं होता स्ट्रिक्टली। He hears on applications for ejectment of tenant when landlord applies. Under this ordinance, he has been bestowed upon discretionary powers. A lot of discretionary powers are bestowed upon him under this ordinance. Was काफ़ी powers है. Under section 11 of this ordinance, the status of building cannot be changed without prior permission of control. For example, आपके पास एक बिल्डिंग है और वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए है। आप कहते हैं मैंने उसको कमर्शियल यूज़ करा, तो रेजिडेंशियल वो कमर्शियल कन्वर्ट, हालांकि बिल्डिंग आपकी है, लेकिन आप कंट्रोलर के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो आप देखें कितनी ज़्यादा वास्ट पावर्स है उसके पास, कंट्रोलर के पास। तो याद रख लें, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, कंट्रोलर होता जज है, लेकिन आप उसको लिखते रेंट कंट्रोलर है, आप उसको जज कहते नहीं हैं। उसके पास सूट्स फाइल नहीं होते, उसके पास एप्लीकेशंस दायर होती हैं। और इसकी वजह से ना इसके अंदर सीपीसी, इसकी वजह क्या है, इसका विजडम ये है ताकि ये टेनेंसी के मामलात को तेज़ी से चलाया जा सके। क्योंकि आम सूट्स के जो मामलात होते हैं उनको, उनमें आपको पता है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन होते हैं वो मामलात। तो ये इसलिए ये इसको स्पेशल लॉ, ये एक स्पेशल लॉ है ना रेंट का लॉ, इसलिए इसको स्पेशल रखा गया है। जिस तरह फैमिली लॉ में आप सीपीसी जो है वो अप्लाई नहीं होती, इधर रेंट के मामला में भी अपने याद रखना है सीपीसी अप्लाई नहीं होती जब आप अर्बन रिस्ट्रिक्शंस रेंट की बात करते हैं। इवन जो हमने टेनेंसी एक्ट पढ़ा था तो उससे भी जब रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह होता है उनके सामने भी सीपीसी उस तरह से अप्लाई नहीं होती, सिर्फ वो एक किस्म का उस पर से एनालॉजी ड्रा कर सकते। बिल्कुल कंट्रोलर भी इसी तरह एनालॉजी ड्रा करता है सीपीसी से, लेकिन उस तरह से सीपीसी अप्लाई नहीं होती। ओके, व्हाट इज़ बिल्डिंग? अब देखना, बिल्डिंग एक नेक्स्ट चीज़ आ गई। हमने लैंडलॉर्ड पढ़ लिया, टेनेंट पढ़ लिया, कंट्रोलर पढ़ लिया, हमने बिल्डिंग को देखना है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग मीन्स अ प्लेस और स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑन रूम, लॉन, किचन, बाथरूम एंड गैरेज। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पूरा हाउस आप उसको कह लें। As far as this ordinance is concerned, any place or structure which is let out for any purpose and landlord receives rent against such let is called building। सिर्फ वो बिल्डिंग, वो मतलब बिल्डिंग है ना, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। याद रख लें, ये वो चीज़ें हैं जो अर्बन एरियाज़ में आती हैं, ठीक है। आपको पता है ना, जो हमने पढ़ा था रेवेन्यू, जो लॉ भी हमने पढ़ा था 1967 का लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसमें भी मैंने बताया था कि जो लैंड की डेफिनेशन है वो अपनी याद रखनी है कि उस लैंड के ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो कैटल की फार्मिंग के लिए होता है तो वो, या बिल्डिंग उसको आप कह लें, वो रेवेन्यू में आता है। लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये वो है जो अर्बन एरियाज़ में। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिफाइन द बिल्डिंग इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। दिस डेफिनेशन इंक्लूड सम एक्सेप्शन सच एज रूम इन हॉस्टल। वो भी बिल्डिंग में क्योंकि उसको भी देखे ना, जब आपको रूम दिया जाता है हॉस्टल में तो भी लैंड और टेनेंट का तो रिलेशनशिप आपका डेवलप हो गया। रूम इन होटल, रूम इन बोर्डिंग हाउस, एनी प्लेस और बिल्डिंग विच इज़ लेट आउट बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस इज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। यानी कि कोई बिजनेस के लिए हो गया तो फिर वो तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो ना हो, उसको अब नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। शेड्यूल बिल्डिंग, अब ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो एक, देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग वो जो रिहाइश, नॉन रेजिडेंशियल वो जो हमें रिहाइश नहीं होती, जो कमर्शियल, फिर अगला पर्पज़ क्या हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। शेड्यूल बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग विच इज़ पार्टली यूज फॉर रेजिडेंस एंड पार्टली यूज फॉर बिजनेस और ट्रेड पर्पज। आपने देखा होगा कई घरों में ऐसे होता है, ऊपर वो खुद रह रहे होते हैं तो नीचे दुकानें होती हैं, अक्सर बहुत जगहों पर नॉर्मली ऐसे आपने देखा होगा, स्पेशली सिटीज़ के अंदर ना, अर्बन एरियाज़ में। तो ये वो उस बिल्डिंग को आप शेड्यूल बिल्डिंग कहते हैं। एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न फॉर विच बिल्डिंग इज यूज पार्टली शुड बी प्रोफेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू दिस ऑर्डिनेंस। अब ये कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल हैं जिनके आपने सिर्फ यही काम उधर कर सकते, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते आप। विच आर लॉयर, आर्किटेक्ट, डेंटिस्ट, इंजीनियर, वेटनरी सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग प्रैक्टिशनर ऑफ इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सॉरी, सिस्टम में आर किसी का ई आना चाहिए था, ये वो हकीम इस तरह के होते हैं, मतलब वही है ना, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसी को कहते हैं। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ शेड्यूल बिल्डिंग। एवरी टाइप इज नॉट ऑफ, तो person residing in scheduled building may or may not be the actual owner of the building. He may either be owner himself or any other tenant। देखिए ना, वही
हो सकता है टेनेंट और उसने आगे उसको सबलेट किया हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें याद रख लें। इसमें जो टेनेंसी शेड्यूल बिल्डिंग के साथ होगी उसको शेड्यूल टेनेंसी कहेंगे, जो रेजिडेंशियल के साथ होगी उसको रेजिडेंशियल टेनेंसी कहेंगे, जो कमर्शियल के साथ होगी उसको कमर्शियल टेनेंसी कहेंगे। एक बात। दूसरा, बिल्डिंग की 3 किस्में हमने देख ली हैं, एक है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग और तीसरी शेड्यूल बिल्डिंग। अर्बन एरिया, ये लास्ट डेफिनेशन है कि अर्बन एरिया वो एरिया जहाँ पे इस ऑर्डिनेंस का अप्लाई किया जा रहा है। ये कंटोनमेंट नहीं होता है, वो कंटोनमेंट के जो रेंट के लॉज हैं वो अपने होते हैं। वो कंटोनमेंट एरियाज़ में एग्जेक्टिव ऑफिसर बैठता होता है, वो जज, उसके पास जुडिशियल नॉलेज नहीं होता, और ये इस पर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। इसीलिए आप बहुत दफ़ा देखते हैं कि नेशनल कमीशन पाकिस्तान में जो लीगल कमीशन है कितने बड़े, जिन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव ऑफिसर्स की जगह आप जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाएं, क्योंकि उनको लॉ का ज़्यादा पता होता है। कंटोनमेंट एरिया में याद रख लें एग्जेक्टिव ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं होते। जबकि ये जो रेंट कंट्रोलर हम इस ऑर्डिनेंस के तहत पढ़ रहे हैं, रेंट प्रीमिसेस पंजाब का देख लें या सिंध का देख लें या इस्लामाबाद का देख लें, तो उनमें जो आपके पास कंट्रोलर्स हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, सिर्फ उनको लिखा कंट्रोलर जाता है। जैसे जब फैमिली जज होता है तो आप उसको सिविल जज लिखते हैं, आप उसको फैमिली जज लिखते हैं। तो ये सिर्फ नाम की डिस्टिंक्शन है, क्वालिफिकेशन वही होती है। An area which is administrated by a municipal corporation, a municipality, a municipal committee, a town committee, or a notified area committee is called urban area. Government may by orders exempt any area or specific building from the application of this ordinance. ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। याद रखें, इस पर कंटोनमेंट नहीं आता। कंटोनमेंट भी रेंट कंट्रोलर बैठता है, लेकिन वो ये नहीं होता, उसके अपने लॉज है। तो ये इस पूरे अपने टॉपिक में हमने सिर्फ थोड़ा सा देखा कि अर्बन रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन कैसे है, और उसका जो मेन बिल्डिंग क्या है, शेड्यूल बिल्डिंग क्या है, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, टेनेंट और लैंड लॉर्ड, क्योंकि याद रखें ये हमने लैंड और टेनेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है हमेशा रेंटल लॉज में। थैंक यू।